So, very good evening to all the viewers of the CLC online platform. 14 September 2025, NDA paper, GAT, first 50 questions based on English. चलिए इनका आंसर करते हैं and then we will go for the further. जो कुछ भी हमें बोलना है, we are going to go through that. Let's continue. तो सबसे पहले आपको एक पैसेज पूछा गया है, तो I don't want to go through the passage. Just read out the passage. You will clearly understand the answers. तो मैं आंसर्स बता देता हूं. First question. Why do 20th century advances not seem sustainable? तो it is only because due to the increased cost of agricultural production. So ये होंगे आपके आंसर 1 का B. What pushes the farmers into places unsuited for agriculture? That is population growth. What pushes farmers into places unsuited for agriculture? That is population growth. Number one, A1. Number 3, which of the following is not true according to the passage for ecological degradation? The correct answer is World War II. Option D. 4. What is the conclusion of the author in the passage about the prospects of agriculture in the world? Author is both hopeful and skeptical of the prospects of agriculture. Number A, 1. And 5 ka, which one of the following words means incursion? That is A, invasion. 5 ka 1, A. Question number 6. Convert into indirect speech. Ayushi said to the group, "We have had enough of suffering today. It is time to march forward." तो आपको have had दिखाई दे रहा है, तो ये indirect होते ही had हो जाएंगे. तो let's go to the option where we had. तो ये केवल had है, ये had. और इसमें set to है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आस्क्ड तो नहीं होगा, तो इस हिसाब से आस्क्ड हट जाएंगे. और वी, आयुषी सेड टू द ग्रुप, वी, तो ये बन जाएंगे दे, तो दे होंगे, तो वी नहीं होंगे. करेक्ट ऑप्शन इज 1. आयुषी टोल्ड द ग्रुप दैट दे हैड इनफ ऑफ सफरिंग्स, और ये टुडे बन गया दैट डे, एंड इट was time to march forward. 6 का A. 7 का convert from direct speech to indirect speech. Alas, we lost the match by 1 point. Alas cannot be an exclaimed or told. It can be a regretted. That तक कोई दिक्कत नहीं. They lost हो गया V2, तो ये past perfect में change हो जाएगा, तो ये हो गया A. The captain regretted that they had lost the match by 1 point. 7 का A. 8. ये आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करना है. Where were you last week? Alok asked Sheila. तो told हट जाएगा, asked आएगा, Alok where, she, were है, तो were बन जाएगा had been. वॉज नहीं होंगे, हैड बिन होंगे, तो लास्ट वीक की जगह द वीक बिफोर हो जाएंगे. करेक्ट ऑप्शन होंगे 8 का बी. 8 का बी. 9. द किंग हु द पीपल लव्ड बिल्ड द कैसल 5 centuries ago. ये वॉइस चेंज है, तो यहां पे दी कैसल से शुरू हो रहा है. द कैसल बिल्ट है V2, वॉज बिल्ट नहीं होंगे, वॉज बिल्ट 5 centuries ago.
बाय द पीपल नहीं, हु लव्ड नहीं, वॉज लव्ड बाय द पीपल। तो करेक्ट ऑप्शन होंगे 9 का ए। 9 का ए। The company has recruited 400 engineers who will have to complete an internship for 3 weeks. तो इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। 400 engineers से शुरू होंगे, तो 400 engineers the company has recruited by नहीं आएंगे, 400 engineers। यहाँ पे है has recruited, बन जाएंगे have been recruited by the company। internship of this नहीं, ये वाला सेंस हट जाएंगे, कॉमा recruited and और उसके बाद अगला सब्जेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय कंप्लीट। इंटर्नशिप इज द सब्जेक्ट एंड इंटर्नशिप ऑफ 3 weeks विल हैव टू बी कंप्लीटेड बाय देम। नंबर ए, 10 का ए, यहां पे तो विल हैव टू कंप्लीट नहीं आएंगे, इसके कारण हट जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 10 इज ए। 11, ये आपको पूछा है पेयर द करेक्ट मीनिंग। सेल्डम मतलब कभी कभी, हार्डली एवर, एंड टाइम एंड अगेन। 11 का ए, सेल्डम मीन्स कभी कभी और ऑफन मीन्स प्राय, तो टाइम एंड अगेन। करेक्ट ऑप्शन 11 का ए। ओवरव्यू इज अ जनरल आइडिया एंड रिव्यू इज एन असेसमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज 12 का बी। 13, overcome and succeed। overcome is a triumph over और succeed होता है to achieve something। तो करेक्ट ऑप्शन इज 13 का ए। embed and imbue, तो ये बेसिकली embed हो गया, जो आपके दिमाग में घुसाया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, और imbue का मतलब इंस्टिल होता है। तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज 14 का बी। Emancipate and empower। Emancipate का मतलब आजादी, empower का मतलब सशक्त। तो emancipate is liberation, liberate, liberal, freedom, जो भी बोलो। लेकिन empower encounter नहीं है, authorization नहीं है, but to authorize है empower। तो the correct option to go for is 15 का बी। और एमेंसिपेट ऑथराइज होता ही नहीं है, तो कोई लेना देना नहीं है। 15 का बी। 16 का यहां पूछा है नियरेस्ट इन मीनिंग। ओके, द प्रोफेसर हैज बीन एबल टू इंस्टिल, अभी इंस्टिल हमने किया है, दैट मीन्स इनकलकेट। 16 का ए, कुछ चीज को डालना। 17, the member of the group express their allegiance। allegiance is basically support होता है, तो support यहाँ पे एक सिर्फ commitment हो सकता है जो दे सकता है। support express their commitment to the leader। तो 17 का A। the inscrutability which means अस्पष्ट, not clear, जो इसमें रहस्य है, कुछ साफ नहीं है, धुंधला सा है, तो मिस्ट्री कुड बी अ वेरी गुड वर्ड टू यूज फॉर 18 का डी। 19 का हो गया डॉजी। डॉजी इज बेसिकली डिसऑनेस्ट, जो बेईमान होते हैं, डॉजी बिहेवियर। 19 का हो गया सी, द डॉजी बिहेवियर ऑफ द लीडर लेड टू हर फॉल। डॉजी मीन्स डिसऑनेस्ट। 20, people have been advised not to venture into sea as the weather is likely to be unpleasant। Unpleasant is squally, that means inclement, unpleasant। अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल can be a very good word with squally। Number A, 20 का A। 21,
तो इसका होंगे Sufism is an English word coined in the 19th century. Historians have understood this term in several ways. Number one, according to the scholars, it is derived from saf, meaning wool. The word used for Sufism in Islamic texts is tasawwuf. Others derive it from safa, meaning purity. It may also have been Sufa, the platform outside the place of Islamic worship. The correct option becomes P, Q, S and R. P, Q, S and R. Number 3. 21 ka 3. 22. Al-Biruni was born in 1973 in Khwarizm in present-day Uzbekistan, followed by Khwarizm was an important center of learning, and Al-Biruni received the best education available at that time. Okay. He was well versed in several languages: Syriac, Arabic, Persian, Hebrew, and Sanskrit. However, he did not know Greek, although he was familiar with the works of Plato and other Greek philosophers. In 1017, when Sultan Mahmud invaded Khwarizm, he took several scholars back to the capital Ghazni. Al-Biruni was one among them. He arrived in Ghazni as a hostage but gradually developed a liking for the city. So the correct option becomes R, Q, S and P. R, Q, S and P. Number 2. 22 ka 2. Vijayanagara, or City of Victory, was the name of both a city and an empire. This empire was founded in 14th century. In its heyday, it stretched from the river Krishna in the north to the extreme south of the Indian peninsula. In 1565, the city was sacked and subsequently deserted. Although it fell into the ruin in the 17th, 18th centuries, it continued to live in the memories of the people who inhabited the Krishna Tungabhadra Doab. Number 4. They remembered it as Hampi, a name derived from the local mother goddess Pampa Devi. So this would be the correct option to go for. S, P, R and Q. S, P, R and Q. Number 3. Number A. Number 1. 23 ka 1. 24. Liberalization and globalization freed India's economy from the low GDP trap that had impeded India's progress. India's 3 PC rate of growth and a set of emergent circumstances led to a balance of payment crisis in the early 1990s. In a landmark budget in 1991, responding to the emergent crisis, India delicensed many industries and liberalized its economic policies. Ease of business was ensured, and the requirement for import licenses and production quotas were removed. Apart from these measures, India also took a loan from the IMF to tide over the crisis, but after 1993, India has not taken another loan from the IMF. Very good option. The correct option becomes PSQR. PSQR. Number 4. 24 ka 4. D. 25.
In many countries, there are millions of people who are underprivileged and deprived are one such form of exploitation in our country has been beggar of forced labor without payment. Another closely related form of exploitation is buying and selling of human beings and using them as slaves. Both of these are prohibited under the Constitution of India. The marginalized are often subjected to exploitation by their fellow human beings. In the past, forced labor was imposed by landlords, moneylenders, and other wealthy persons. The correct option becomes Q, S, P, and R, which means number 4. 25 ka number 4. 26. I cannot be bothered to tell him what I think. In any case, he would not listen to me. जो भी कहो वो मेरी बात सुनेगा नहीं. In any case, 26 का B, second. 27. Briefly, if the referee points his fingers, this indicates that someone has done something wrong. Briefly, in short. तो on the contrary का कोई लेना देना नहीं है. 27 का C. Frankly, have you been to the local library yet? 28 का B. To a large extent, women are healthier and are living longer than ever before. Indeed, on an average, they can expect to live 5 years longer than men. अगर हम वृहद पैमाने में बात करें, to a large extent, तो best option to go for is 29 का A. The difference is that I have been fortunate to find a career that I love, and broadly speaking, I am getting paid reasonably for it. Number B, 30 का. आमतौर पर, in general, the government of India has followed the policy of trying to improve the relations with its neighbors. 31 का D. As per reports, this issue is likely to be discussed when the council meets next. 32 का A. In that case, you needed to consult a physician to have a clear idea of what the disease is about. Correct option is 33 ka A. Notably, in the year ago period, the current account deficit stood at 1 to 3 billion or 0.2% of the GDP. $1 billion or 0.2% of the GDP, notably. 34 ka B. Hence, the records have been completely undermined by shoddy bookkeeping. The correct option is D, 35 ka D, hence. फेलिसिटेट करने का मतलब होता है किसी को सम्मानित करना, उनके लिए अच्छे शब्दों का बोलना, लेकिन जब भी उनके लिए अपशब्द का प्रयोग किया जाए तो दैट इज बेसिकली एन इनफेलिसिटी. द बेस्ट ऑप्शन इज एन इनअप्रोप्रिएट रिमार्क. 36 का बी. Corollary is basically something that naturally follows. Corollary that naturally follows. 37 ka C.
Quandary is a state of being confused. So, situation in which you confused about what to do are squandary. Presumption is something predicted with past experiences. पहले की आपके साथ हुई घटनाओं पर अनुमानित कुछ चीजों को presumption कहते हैं. तो the best option to go is prediction based on past experiences. 39 का A. Smug is too confident about one's own achievement. जब आप अपने बारे में more than 100% confident हो तो you are in a situation of being a smug. Too confident about one's own achievement. 40 का A. Whereas traditional fairy tales were designed for the entertainment of children, they also contain deeply embedded moral lessons that are relevant even for adults. The correct option becomes Q, S, P and R. Q, S, P, R, which means number D. 41 ka D. That sporting activities are an integral part of school education is an ineluctable truth that underscores the learning process and contributes meaningfully towards the overall growth of a student. The correct option becomes Q, P, S and R. Correct option is 1. 42 ka A. The beneficial outcome of a virtuous life is peace of mind and contentment on account of a life lived well without retribution or rebuke. Correct option is Q, S, P and R. Correct option is C. 43 ka C. 44. It is widely believed that the parliamentary system differs from a non-parliamentary system in as much as the former is more representative than the latter. The correct option is S, Q, R and P. S, Q, R and P. Number 1, A. 44 ka A. 45. 45 is when services is done for exhibition or for fear of public opinion, it stuns the person offering the same and crushes the spirit behind the service. Very good sentence. तो ये है आपके ऑप्शंस. द करेक्ट आंसर बिकम्स S, R, Q and P. S, R, Q and P. Correct option is D. 4. 45 का D. 46. It does not look like he is going any further in his studies than what was predicted by the school principal. 46 का A. 47 का amid all the confusion the thief made a quiet getaway. यानी कंफ्यूजन के बीच में जो चोर है वो खिसक गया. D. 47 का D.
The intricate operation of the patient required the expertise of a specialized surgeon. Specialized surgeon. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 48 का डी. There are fewer than 30 students inside the classroom at any time. There are many stationed vehicles on the highway due to a sudden landslide. तो 50 का हो गया बी. So these are the answers for all the 50 questions of this 14th August 2025 NDA GAT English paper. Now I would like to just give all the basic information to the aspirants of NDA and Air Force, Navy. If at all you are planning to go for the next session, which is going to be conducted in the coming April 2026, come and join us, CLC. We are always ready to make you shine. Hello students, welcome to the solution and the online platform of CLC NDA Academy. We are here for the solution of GATE and the paper is really we can see easy, and if someone is not trying, that can be moderate for him or her. ओके, द पेपर इज रियली सिंपल और आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा. जो हमारे टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन कर रखी थी उनके लिए पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा. उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन यूं के यूं हमें दिख रहे हैं, PYQs आपको दिखे हैं. तो अच्छे से बिल्कुल सिंपली यदि जिसने अटैक किया है पेपर पर, बिल्कुल सिंपल, अगर उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए हैं, कॉमन सेंस यूज करते हुए सिंपली ट्रिक लगाई है, तो वो गलत होने का चांस ही नहीं है. जल्दबाजी में जिसने गलत कर दिया हो, इफ समवन ट्राइज रियली सो हार्ड कि पेपर बहुत टफ आता है, तो उस केस में पॉसिबल है कि उनका कुछ गलत हो गया हो. बाकी पेपर बहुत सिंपल था. सिंपली एक दो क्वेश्चन देखो आता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया है. ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर एंड कम फॉर द सॉल्यूशन. एंड वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज the focal length of a concave lens is 0.5 meter. The power of the lens is, power of lens P is equals to 1 upon F and F for concave lens is negative. So 0.5 in meter है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है चेंज. तो 1 upon 0.5 that is negative. It means our answer will be minus 2.0 diopter. तो अपना ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला. And here is the next question. The rule to determine the direction of a force experienced by a straight current carrying conductor placed in a magnetic field. अगर magnetic field पर अपन कंडक्टर रखते हैं तो बिल साइन थीटा जो आपका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, ये आपका यहाँ काम कर रहा है. तो ये जो होता है ये कौन से लॉ से निकालते हैं हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स left hand rule will be the right answer. Next one is 1 parsec is astronomical units in about. देखो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आ रही है वो हमें मिलती है कितनी, 1 parsec एंड 1 AU बोथ आर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. और AU को पूछा गया था पहले भी, तो यहाँ पार्सेक और इसमें जो रिलेशन आता है वो कौन सा आ जाता है, C आ जाता है, 2 × 10⁵. ये 11th क्लास से जो दिया हुआ है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू del P upon del T. The external force is directly proportional to the rate of change of momentum. Rate of change of momentum, that is कौन सा सही नहीं है. अब उसको हम जब आगे करते हैं, इफ द मास इज कांस्टेंट तो F कैन बी रिटन एज F इज इक्वल्स टू ma ऑल्सो. देन द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द बॉडीज एक्सीलरेशन. इसका मतलब इससे हमारा सही है. द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इन द सेम डायरेक्शन एज एक्सीलरेशन. क्या फोर्स जो होता है वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, बिल्कुल सही है. आप वेक्टर लगाइए इस पे एक्सीलरेशन पे, तो यहां जो फोर्स है उसी की डायरेक्शन में होता है. ये भी स्टेटमेंट सही है. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल, द टाइम रेट
ये रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड, यहाँ टाइम रेट बोला है तो वो फोर्स के बराबर है कि नहीं है, वो भी बराबर है। लास्ट वाला, द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द बॉडीज मोमेंटम, ये बॉडी के मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, बॉडी के मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है कह रहा है। बॉडी के मोमेंटम के प्रोपोर्शनल नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, और वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मोमेंटम के ना होकर के चेंज इन मोमेंटम के होगा, तो स्टेटमेंट अपना गलत हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 310 केल्विन टू 340, द डिफरेंस इज 30 केल्विन। अब जो रेंज अपन देखते हैं 0 to 100 अपनी किसकी होती है, डिग्री सेंटीग्रेड की, और अगर केल्विन में देखें तो वो 273 से 373 होता है, तो रेंज दोनों की सेम होती है, तो टेम्परेचर में जो इंक्रीज होगा वो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो ये अपने पास आ जाएगा, रेंज जो होता है उसमें दोनों में 100 का होता है, अपना आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट वन इज which one of the following statements for the work done by gravity on a body is not correct? ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात करें, तो ये कंजर्वेटिव पाथ पर डिपेंड नहीं करता है और ये पाथ पर डिपेंड करता है। ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और ये पोजीशन पर डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे। तो हम बात करते हैं किसकी, अभी वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो कह रहा है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, कह रहा है बिल्कुल, पूछा है सही नहीं है, इसका मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, सही है बिल्कुल। ये वर्क डन जो है वो किस पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, स्टेटमेंट इज ट्रू। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस सेपरेटिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है कि आप किसी भी रास्ते से चले जाइए, किसी भी रास्ते से चले जाइए, फर्स्ट और फाइनल जो इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है उनके बीच के गैप यानी हाइट पर डिपेंड करेगा। वर्क डन mgh होने वाला है, mgh2 माइनस mgh1 होने वाला है, इसका मतलब वर्क डन डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल, बिल्कुल सही है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, कह रहा है ग्रेविटी वाला पाथ पर डिपेंड करता है, इसका मतलब स्टेटमेंट हो गया अपना रॉन्ग। तो इसने नॉट करेक्ट पूछा है, इसका मतलब अपना आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वर्क डन इज 0 इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल सही है। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग mgh अपन ने चेंज नहीं किया, हॉरिजॉन्टल में वर्क डन। कूली का एग्जांपल देते हैं हम, तो वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी रहता है 0, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट वन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, नहीं, प्रेशर डायरेक्शन नहीं रखता है। एज वी गो डीपर इन ए लिक्विड द प्रेशर डिक्रीजेज, नहीं, डीप जब हम जाते हैं तो ρgh प्रेशर बढ़ता है, ये कह रहा है डिक्रीज होता है, नहीं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, नहीं करते हैं भाई, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट द सेम यूनिट, इट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज Which one of the following wavelength radiations may correspond to an X-ray? यहां जो X-ray का 1 नैनोमीटर भी बनता है, लेकिन 1 नैनोमीटर से जो नेक्स्ट वाली गामा रेज है वो शुरू हो जाती है, इसका मतलब ये उससे रिलेट ना करके, ये तो एंडिंग पॉइंट हो गया, कितना आ जाएगा इसमें, 10 नैनोमीटर। नेक्स्ट वन, इन ए टेलीस्कोप कंपेयर्ड टू आई पीस, टेलीस्कोप में सामने वाला लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, बाइनोकुलर्स आपने देखा होगा उस जैसा, बिल्कुल वो सिंगल पीस में होता है, बाइनोकुलर्स में 2 होते हैं। वहां जो सामने वाला ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई की तरफ होता है आई वाला छोटा लेंस है। ये ऑब्जेक्ट लेंस क्या होता है, लार्जर फोकल लेंथ रखता है, लार्जर अपर्चर रखता है, साइज में भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एनर्जी ई ऑफ ए फोटोन, ई इज इक्वल्स टू अपना होता है एच न्यू। पूछ रहे हैं कि एच जो है उसकी डायमेंशंस किसके सेम होती हैं। ये बोर्ड एग्जाम का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन दिखता है ये
E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो H की जो यूनिट्स अगर किसी के याद है तो सीधा अपन कर सकते हैं जूल इनटू सेकंड, और अगर ऐसे याद नहीं है तो देखें अपन E इज इक्वल्स टू H का फॉर्मूला हमारा बन गया है E अपॉन न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1 अपॉन टी, तो यानी E इंटू टी की यूनिट हमें लिखनी है। एनर्जी की हो गई M1 L2 T माइनस 2 एंड T1, सो M1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, T माइनस 1 हो जाएगा। अब ये कह रहा है किसके इक्वल होता है, तो ये याद रहता है अपने एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला mvr से आप निकाल सकते हैं। ये अपना आ जाएगा कितना, m मास हो गया, m1 वेलोसिटी, L1 t माइनस 1 एंड r डिस्टेंस इज L1 अगेन, देन m1 L2 t माइनस 1। बहुत सिंपल है, ये वाला आ जाएगा किसके इक्वल, देखो सेम, तो अपना आंसर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, यानी थीटा अगर पॉजिटिव, थीटा के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0 टू 90 अगर हुआ तो, और 90 पर आपने थीटा 90 रख दिया तो वर्क डन क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। तो अपना वर्क डन व्हेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट जो है, यदि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, F एंड this displacement is perpendicular, then work done will be 0. Next one is the magnetic field inside a current carrying very long solenoid. solenoid का अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह से हम बनाते हैं, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं वो होती हैं कैसी, पैरेलल और यूनिफॉर्म। तो ये जो अपना आंसर आता है इस तरह से, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होती है, करंट इस तरह से जाएगी तो करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं और ये छोटी होती तो एज ए बार मैग्नेट भी बिहेव कर सकती थी। तो यहां अंदर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड, ये कह रहा है बहुत भीतर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनसाइड द करंट कैरिंग, तो वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज which one of the following instruments can be used to measure 250 डिग्री माइनस 250 डिग्री टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर में कौन सा काम करेगा, -10 तक। देखो ये जो ऐसे एपरेटस में ऐसे लिक्विड को काम में लिया जाता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो, ताकि वो काफी लो टेम्परेचर तक को मेजर कर सके। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं उसमें से सबसे कम जो यूज हो रहा है वो कौन सा आ जाएगा, गैस थर्मोमीटर यूज हो सकता था पर इसमें ऐसा है नहीं, तो एल्कोहल थर्मोमीटर जो है वो यहां यूज होगा। ठीक है, वैसे भी सर्दियों में जो हमारे मिलिट्री मैन होते हैं वो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये वैसे भी आप दिमाग लगा सकते थे। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। देखो ये कह रहा है विद कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट जो चेंज होती है, तो स्टेट चेंज होती है तो हमारे पास होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जो आपकी स्टेट चेंज होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ सब मेल्टिंग पॉइंट पर। तो ये हमारे पास जो आएगा वो लेटेंट हीट कौन सा, कहां जा रहा है, ये द्रव से वाष्प यानी लिक्विड टू वेपर। तो लिक्विड कौन सी हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये कौन सी हो जाएगी, लेटेंट हीट। तो इसका मतलब ये किस तरह से डिफाइन करना चाह रहा है, ml से, तो LF हो जाएगा Q/m। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास इनटू लिक्विड टू वेपर। तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। द टेम्परेचर ऑफ विच एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ओपन वेसल बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है लिक्विड, तभी वो वेपर में बदलने लगता है। तो इसका मतलब है वो जो पॉइंट है वेपर में कब बदल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पर बदलता है। इसका मतलब अपना ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सरफेस टेंशन इज करेक्ट। सरफेस टेंशन के बारे में बात करें तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब सरफेस टेंशन टेम्परेचर देने से डिक्रीज होता है, तो इट डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। नेक्स्ट वन इज
ए बॉडी सिंक्स इन वाटर व्हेन, कोई पिंड जल में डूब जाता है जब। डेंसिटी ऑफ, देखो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी लिक्विड से वो डूबेगा। तो यहां वाटर की बात कर रहा है, तो वाटर से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन द ऑब्जेक्ट। तो अपना सेकंड ऑप्शन देखें, डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ बॉडी। तो बॉडी से वाटर की डेंसिटी कम होगी तो बॉडी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो वो डूब जाएगा। नेक्स्ट वन इज वाई, next one is why a fielder in the ground gradually pulls his hands backward while catching a fast moving cricket ball। देखो ये हमारा एग्जांपल आता है इम्पल्स में। इम्पल्स में हम ये कह रहे हैं कि F इंटू टी को उसको कम करना था, तो यानी चेंज इन मोमेंटम को इक्वल करना है, तो वो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होता है हमारा। ये डेल अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी फोर्स होता है। तो हमारा फोर्स जो है वो एफ डेल टी है, डेल पी इक्वल्स टू, अब हमारे पास ऑप्शन था एफ डेल टी इज इक्वल्स टू डेल पी। तो अगर हम फोर्स को कम करना चाहते हैं तो डेल पी अपॉन डेल टी, डेल टी को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टाइम को आप ज्यादा लगाते हैं, आप पीछे खींचते हैं तो आपको उस चेंजमेंट में टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स क्या होगा, कम। और फोर्स किसके इक्वल है, एम ए। इसका मतलब ए भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, टू रिड्यूस द एक्सीलरेशन। ज्यादा एक्सीलरेशन से टकराएगी, ज्यादा चेंज आपके हाथ में ही होगा तो ज्यादा चोट लगेगी, तो उस एक्सीलरेशन को कम करने के लिए तो अपना आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। वो जो वाटर टैंक होता है उसका जो पेंदा होता है वो उथला दिखता है। स्विमिंग पूल पे चेतावनी लिखी होती है, जितना वो गहरा दिख रहा है उससे वो ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना बिहाइंड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनार स्टैंड्स फॉर। सोनार का ये आप देख रहे हैं, अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किए हैं। 15 के आसपास क्वेश्चन यही टेस्ट सीरीज में आ चुके हैं, आप उसको देखें। ये बहुत सिंपल पेपर आया है, आप एंजॉय कर रहे हैं, शायद आपने पढ़ा है, जो अच्छे से करके आया है उसको मजा आ जाएगा। इस बार वो एसएसबी के लिए जा रहा है। नेक्स्ट वन, सोनार स्टैंड्स फॉर। सोनार का पूर्ण रूप है दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज लॉन्गर वेवलेंथ। किसकी रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा है। तो अगर आपको याद हो तो ऊपर से रेडियो शुरू करते हैं अपन, रेडियो, फिर आ जाता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर कौन आता है, विजिबल, फिर कौन आता है, यूवी, 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 एक्सरे एंड गामा। तो यहां जो हमारे पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ लेमडा मैक्सिमम इसका होता है, तो ऊपर से माइक्रो, माइक्रो जो है वो सेकंड नंबर पर हमें मिल गया, तो ये वाला जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज फॉर ए मटेरियल अंडर स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन, विच वन अमंग द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कह रहा है कि कौन से मटेरियल को आप स्टैटिक कंडीशन में चार्ज कर सकते हैं। तो स्टैटिक का मतलब हम करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा, हम 12th में टॉपिक पढ़ते हैं, आपने कंघे के लिए स्केल को चार्ज कर सकते हैं अपन, वो जो चार्ज आता है, कुर्सी पर चार्ज आता है, इस तरह के जो भी आते हैं वो चार्ज कहां से आ रहे हैं, दे आर कमिंग बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल इंडक्शन। इट इज ट्रू फॉर द इंसुलेटर। एंड आप कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर पर भी क्या आता है, चार्ज आता है। हमने 12th क्लास में पढ़ा है कि कंडक्टर का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये सब आपने पढ़ा है। इसका मतलब दोनों को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। बोथ परफेक्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड, तो ये हम दोनों को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। जो नियर, जो अपन क्लियर देखते हैं वही आपका रोग होता है। तो हमारा मायोपिया जो होता है उसमें हम क्लियर देख पाते हैं, कौन सा, पास वाला, कौन सा नहीं देख पाते हैं, दूर का। इसका मतलब कैन नॉट सी डिस्टेंस, तो कौन सा हो गया हमारा ये मायोपिया। मायोपिया में पास का दिखता है, इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज, इसमें देखो दिया हुआ है साफ साफ कि निकट दृष्टि दोस्तों, नाम जो आता है वो तो हमें क्लियर दिखता है, दूसरा वाला नहीं दिखता है। नेक्स्ट वन इज द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड फॉर ए सिस्टम इन विच।
किसी एनर्जी को कंजर्व रख रहे हैं तो एनर्जी को आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे सिस्टम को दे दी, तो एक सिस्टम में क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां लागू होगा। नॉन आइसोलेटेड में तो दूसरे के पास चलेगी तो कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज सपोज ए बॉल ऑफ मास m is thrown upwards from a point A and it reaches up to the height point B and returns back to A। यहां A से गई, फिर कहां पहुंची B पर, और B से वापस कहां आ गई, A पर। ये इसका पाथ था, ठीक है। अब उस केस में कह रहा है कि कौन सा सही है, काइनेटिक एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B। बिल्कुल सही है। जो यहां इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो जब यहां मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल, और यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाती है, 0। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वन ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होंगी, नहीं यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी एट B इज पोटेंशियल एनर्जी B, यहां काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इक्वल नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी एट B एंड काइनेटिक एनर्जी A के बराबर है, नहीं यहां पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की काइनेटिक एनर्जी B पे थी ही नहीं, तो A पे उसके बराबर नहीं हो सकती। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला। तो ये था हमारा पेपर सॉल्यूशन फिजिक्स का। बहुत आशा हमें है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, एंड वी अप्रिशिएट योर वर्क थ्रू आउट फॉर द टेस्ट सीरीज। आप हमारे साथ रहे, आपने इतनी मेहनत की। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी एट CLC सीकर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आज NDA 2025 का जो अभी एग्जाम पेपर कंडक्ट हुआ है हाल ही में, हम उसी का वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन का। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 96। The reaction that occurs on passing carbon dioxide gas through lime water। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है कि लाइम वाटर जो होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, लाइम वाटर किसे बोलेंगे हम, CaOH होल ट्वाइस को। लाइम वाटर में जैसे ही हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, CO2 गैस पास करेंगे, तो क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2O। कौन बनेगा स्टूडेंट्स, CaCO3 प्लस H2O। स्टूडेंट्स, हमसे यही पूछा था कि कौन सी रिएक्शन होगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड। अब अगर एक्सिस में हम CO2 पास करेंगे तो कैसा हो जाता है, मिल्की। कैसी आ जाता है, मिल्कीनेस थोड़ी आ जाएगा इसमें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following statement is not correct। स्टूडेंट्स, हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। स्टूडेंट्स, किसी भी सॉल्ट के, किसी भी लवण के सूत्र में, फॉर्मूले में जो वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वही क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जिप्सम का फार्मूला लिखेंगे तो CaSO4.2H2O, तो यहां पे ये जो 2H2O मैंने लिखा है ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसका नंबर भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमसे तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो पूछा है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस मींस POP। POP का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। स्टूडेंट्स, हमें क्या दे दिया, 2H2O। ये तो जिप्सम होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following type of medicine is used for treating indigestion। स्टूडेंट्स, indigestion के लिए किस मेडिसिन का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है वो, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एंटा एसिड यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या यूज होते हैं, एंटा एसिड। और इसमें भी बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम बोलते हैं MgOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम यूज करते हैं। तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is not present in cement। सीमेंट में इनमें से कौन प्रेजेंट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है और ट्राई कैल्शियम का जो एल्यूमिनेट है, ये
प्रेजेंट होता है जबकि टेट्रा प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is not a chemical change? Students, chemical change कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज होता क्या है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन क्या होता हो, चेंज होता हो या किसी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हो। यहां से हम देखें बर्निंग ऑफ कोल, तो यहां से कंबशन जो है वो केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ मेटल, तो मेटल का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, ये भी केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, यहां किसी टाइप से किसी कंपोजिशन का चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, यहां केवल क्या चेंज हो रही है? स्टेट, और चेंज इन स्टेट ऑलवेज क्या होता है? फिजिकल चेंज। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज ए फिजिकल चेंज, बिल्कुल सही बोला है कि जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है वो ऑलवेज फिजिकल चेंज होता है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस। स्टूडेंट्स, ये भी स्टेटमेंट सही है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल में जो उसका वैक्स है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, और बर्निंग ऑफ रिबन प्रेजेंट इन वैक्स, ये कैसा हो जाएगा? केमिकल चेंज। उसके अंदर जो धागा है उसका जो जलना है वो कैसा होता है? केमिकल होता है। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल चेंज। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि यहां केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ये क्या रहेगा? रिमेन्स सेम। कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is not a heterogeneous mixture? Students, heterogeneous mixture इनमें से कौन सा नहीं है? Students, सल्फर इन वाटर, जो सल्फर है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अब सॉल्युबल नहीं है तो मुझे बताओ ये तो दोनों कैसे होंगे? हेटेरोजीनस होंगे। सैंडी वाटर, दैट मीन्स व्हाट? वाटर प्लस सैंड। अब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये तो सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये भी इसमें सॉल्युबल नहीं है। मतलब मिक्सचर कैसा है? हेटेरोजीनस। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल्स, सॉल्ट के क्रिस्टल्स और शुगर के क्रिस्टल्स दोनों एक जैसे होंगे, बट दोनों साइज में डिफरेंट है, एक दूसरे से शेप में डिफरेंट है, तो ये भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। दोनों सॉलिड है, इनसॉल्युबल है, इस वजह से होमोजीनस नहीं होंगे। ये भी कैसे होंगे? हेटेरोजीनस। बट इन केस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में जब मैं क्या ऐड करता हूं? सल्फर ऐड करता हूं, तो ये क्या बना लेता है इसके साथ? कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन। ये पार्शियली सॉल्युबल है, तो वहां पर प्रेसिपिटेट होकर के इसके पार्टिकल कैसा सॉल्यूशन बना लेंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। सो करेक्ट आंसर इज 1। ये कैसा होगा? होमोजेनस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। स्टूडेंट्स, हमें दो लिस्ट दी हुई है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं और इधर हमारे को एटॉमिसिटी मेंशन किया हुआ है, और इन दोनों को हमें मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फास्फोरस ऑलवेज P4 में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक, नियोन मोनो एटॉमिक एंड सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, बहुत प्रिडिक्टेबल सा क्वेश्चन है, पहले भी हम बहुत बार कर चुके हैं। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट में 4, सेकंड में क्या होगा? फर्स्ट, और थर्ड में सेकंड, और फोर्थ में थर्ड हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following redox reaction which compound is acting as a reducing agent? एक redox reaction हमें दी हुई है स्टूडेंट्स, N2H4 plus 2H2O2 gives N2 plus 4H2O। स्टूडेंट्स, आपको बताना है यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। स्टूडेंट्स, मुझे बताओ H2O2 ये तो ऑलवेज क्या होता है? OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे बताओ यहां पर ये क्या रहा होगा? Ra। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ यहां नाइट्रोजन की OS क्या है? -2। -2 से कहां आया?
0, -2 से 0 तो क्या हुआ होगा, कोई सोचो, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑलवेज किसकी तरह बिहेव करता है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सो करेक्ट आंसर इज N2H4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is considered to be the purest source of water? Students, purest source of water, very easy question। किसको मानते हैं हम? वर्षा का जल या आशुत जल जो होता है, कभी ऑप्शन में वो मिल जाए तो वो भी हमारा क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following salt is responsible for temporary hardness of water? temporary hardness of water students बाइकार्बोनेट्स होंगे, किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। स्टूडेंट्स, हमें दो लिस्ट दी हुई है, हमें यहां से दोनों लिस्ट को मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पहला दिया है CaO प्लस H2O gives CaOH whole twice। ये किस टाइप की रिएक्शन है स्टूडेंट्स? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कैसी है? डीकंपोजिशन। ये कैसी है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसी है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब एक बार के लिए ऑप्शन हम देखें तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? यहां से थर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is an endothermic process? स्टूडेंट्स, कौन सा एंडो है? कंबसन। कंबसन ऑलवेज कैसा? एक्सोथर्मिक। ये क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन। कैसा? एक्सोथर्मिक। स्टूडेंट्स, जनरली फॉर्मेशन की जितने भी रिएक्शन है वो कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक। और ये कुछ डिकम्पोजिशन टाइप का लग रहा है, तो ये कैसा होगा? एंडोथर्मिक। सो करेक्ट आंसर इज 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is known as water gas? Students, water gas किसे कहते हैं हम? CO plus H2। अगर प्रोड्यूसर गैस हमसे पूछ लेता तो हम क्या बोलते? CO plus N2। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, CO plus H2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following statement is not correct? स्टूडेंट्स, हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहां करेक्ट नहीं है। डायमंड इज हार्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड कोवलेंट बॉन्डिंग इन इट। स्टूडेंट्स, डायमंड बहुत हार्ड होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विस्तृत कोवलेंट बॉन्ड मिलते हैं, सहसंयोजक बंध मिलते हैं। फुलरीन इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग। स्टूडेंट, 12 और 20 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग इसमें होती है। स्टूडेंट, डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो, ये गुड नहीं स्टूडेंट्स। कैसा होता है? बैड कंडक्टर। कैसा कंडक्टर स्टूडेंट्स? बैड कंडक्टर। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। आपका काफी प्रिडिक्टेबल सा क्वेश्चन पेपर रहा है, काफी इजी है। और मेरे साथ है प्रभात सर। तो आइए प्रभात सर, आप थोड़ा बताइए कि पेपर कैसा रहा। पेपर बहुत ही अच्छा रहा है। जो टेस्ट सीरीज रही है, जो क्लास रहा है, उन सब से सारे पेपर अपने यहाँ से गुजरे हुए सारे ही क्वेश्चंस हैं। पेपर का लेवल भी जो लास्ट ईयर है उसके कंपैरिजन में तो थोड़ा ठीक है इस बार, बट सारे क्वेश्चन सारे प्रिडिक्टेबल सही हैं। जैसा अपना कैडेट क्विज सीरीज जो चलता है, सारे क्वेश्चन लगभग अपन ने यहाँ डिस्कस किए हैं। जो अपन की टेस्ट सीरीज है उससे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जीटी जा चुके हैं सर। तो उम्मीद है कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। और अगर पेपर अच्छा गया है तो नो डाउट आप CLCN रहे हैं तो आपके जो मार्क्स है वो भी अच्छे आएंगे। और जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट तो ऑलवेज अच्छा आएगा। ये तो इतिहास गवाह है कि CLC ने तो हमेशा रिजल्ट के मामले में परचम लहराया है अपना। तो क्यों ना इस बार भी आपका रिजल्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव हो। थैंक यू। जय CLC, विजय CLC। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, टीम बायोलॉजी CLC NDA एकेडमी सीकर से। आज NDA का पेपर हुआ है, उसमें जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस नेचुरल सिलेक्शन वाज ऑथोराइज्ड बाय। ठीक है, ऑथर कौन है इसका? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का लेखक कौन है, ऑथर कौन है, ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें चार्ल्स डार्विन, सेकंड है इसमें कैरोलस लिनियस, थर्ड है बारबारा
मैक्लिंटॉक एंड कोपरनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है वो लिखी गई है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। सेकेंड क्वेश्चन आया है 133 नंबर क्वेश्चन है द ऑप्टिमम पीएच एट विच द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वर्क्स आर। इष्टतम पीएच जिस पर मानव आहार नाल के एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन कार्य करते हैं वे हैं। तो देखिए इसमें जो पेप्सिन जो है एंजाइम, पेप्सिन जो है एंजाइम, ठीक है, ये पेप्सिन एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस यानी स्टमक, स्टमक, और जो स्टमक है इसमें HCl के कारण जो पीएच होगा वो कैसा होगा? एसिडिक पीएच होता है, यहाँ पर एसिडिक पीएच होता है। ओके, एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट किस में होता है? पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। और यहाँ का जो मीडियम होता है वो बेसिस होता है, बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर ये पूछा है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो है वो एसिडिक पीएच पे काम करता है एंड ट्रिप्सिन है वो बेसिक पीएच पे काम करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्टिमम जो पीएच वो क्या होता है? पीएच 2.0 एंड 7.9। ठीक है, पीएच 4.5, 3.5, पीएच 9.5, 4.5, पीएच 7.0, 8.0। तो यहाँ पर इसके अंदर पूछा है एंजाइम पेप्सिन, यानी इसके अंदर एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, पीएच 2.0 एंड बेसिक 7.9। तो यहाँ पर पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये है क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 134 द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ्ड इन एंड आउट ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन लंग्स इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, ये इसमें नॉर्मल जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें एयर को ब्रीथ किया जाता है यानी इनहेल एंड एक्सहेल, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ठीक है ना, तो नॉर्मल जो इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है, इंस्पायरेशन यानी जो एयर है उसको इनहेल करना, इन करना, और एक होती है एक्सपायरेशन की प्रोसेस। एक्सपायरेशन जो प्रोसेस होती है इसमें एयर को क्या किया जाता है? आउट किया जाता है। तो ये जो इनहेल एंड एक्सहेल की जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको किससे रेफर किया जाता है? ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो इन एंड आउट ये नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग में दो ही इसमें प्रोसेस होती है, इनहेल करना, एक्सहेल करना, इसको क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम। करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स इन ह्यूमन इज नॉट करेक्ट? आर्टरीज एंड वेन ये ब्लड वेसल्स है, इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है इसमें। फर्स्ट है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट व्हाइल वेन्स ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये सही है, यानी जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं और वेन जो है वो हार्ट के पास ब्लड को लेके आती है, तो ये तो इसमें करेक्ट है। ठीक है, फिर है इसके अंदर सेकंड पल्मोनरी आर्टरीज always carry deoxygenated blood while pulmonary vein always carry deoxygenated blood। ये यहां पे स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि pulmonary arteries always carry deoxygenated blood, क्या आएगा? deoxygenated blood आएगा। ठीक है, यहां पे deoxygenated blood आएगा एंड while pulmonary vein always carry oxygenated blood। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिर आर्टरीज हैव थिकर एंड मोर इलास्टिक वॉल कंपेयर टू वेन इन जनरल। ठीक है, ये भी इसके अंदर क्या है? करेक्ट है। एंड आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्व, आर्टरीज में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते, बट वेन्स डू हैव वॉल्व, ये भी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, यहां पर क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा? इसमें सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल पल्मोनरी वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 136, आइडेंटिफाइड द फंक्शन दैट आर कंट्रोल्ड बाय द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल्ड जो फंक्शन है वो कौन से है? तो हिंड ब्रेन जो है उसमें 3 रीजन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम पार्ट आता है। ये जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट आते हैं? इसके अंदर एक तो आता है सेरिबेलम पार्ट आता है, और कौन सा पार्ट आता है? एक इसमें मेडुला पार्ट आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सेरिबेलम मेडुला जो पार्ट आता है, सेरिबेलम बैलेंस बनाए रखता है, एंड मेडुला जो है इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो आपको देख लीजिए इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सी है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सेलाइवेशन, वोमिटिंग, करेक्ट है। कंट्रोलिंग द रीजन रिसीविंग सेंसरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर, कंट्रोलिंग द मोमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करना, ये फोर ब्रेन का काम है, फोर ब्रेन का फंक्शन है। सेंसेशन ऑफ हंगर बीइंग इन, ये भी किसका पार्ट है? ये फंक्शन किसका है? हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंड ब्रेन का फंक्शन पूछा है। जो हिंड ब्रेन है उसके अंदर जो मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट होता है ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सेलाइवेशन, वोमिटिंग। ओके, नेक्स्ट 137, आयोडाइज्ड साल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। आयोडाइज्ड साल्ट is a vital part of our diet as it is essential for the synthesis of iodized salt। यानी जो ये क्वेश्चन पूछा है आयोडाइज्ड साल्ट, यानी इसमें क्या होता है? आयोडीन होता है। तो आयोडीन अपनी बॉडी को किसके सिंथेसिस के लिए चाहिए? कौन से हार्मोन के सिंथेसिस के लिए चाहिए? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन एंड एड्रेनालिन। तो यहाँ पर आयोडीन का जो यूज है वो थायराइड ग्लैंड करती है। थायराइड ग्लैंड किसके लिए करती है? आयोडीन का यूज कौन सी ग्लैंड करती है? थायराइड ग्लैंड करती है। और थायराइड ग्लैंड किसके सिंथेसिस के लिए? थायरोक्सिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन दैट आर सिक्रेटेड बाय। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस होती है, जो प्राइमेट्स में देखी जाती है, ह्यूमन है, मैन है, एप्स है, उनके अंदर देखी जाती है। इनके अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है ये कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल्ड होती है? ठीक है, तो फर्स्ट है ओवरी, करेक्ट है। लेक्रिमल ग्लैंड आइज में प्रेजेंट होती है, इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। ओवेरी एंड सीबेसियस ग्लैंड जो ऑयल का सिक्रेशन करती है, इनका भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फिर आता है ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है। एंड प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ये तो इसके अंदर प्रेजेंट किसमें होती है? मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, फीमेल में प्रेजेंट ही नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। क्योंकि जो ओवरी है, ओवरी से ही इसके अंदर फीमेल हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। जैसे इसके अंदर ओवरी से सीक्रेट इसके अंदर एक तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच हार्मोन, ये यहाँ पे इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर ओवरी एंड पिट्यूटरी आ जाएगा। करेक्ट आंसर है ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स टाइप सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। एनडीए में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले भी इसके अंदर 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे पूछा गया एंटीबॉडी सीक्रेट करने वाली सेल्स कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ओके, न्यूट्रोफिल्स आपको बताइए इसके अंदर फेगोसाइटिक सेल्स हैं। ओके, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। नेक्स्ट है 140, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार ये आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए, जिसके पास अपना डीएनए है और राइबोसोम होता है, ये कौन सा? इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, इनके पास अपना जो डीएनए राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया
एंड क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियोलस पूछा है। तो यहाँ पे इसके अंदर कौन सा करेक्ट है, जिसके अंदर अपना डीएनए है और राइबोसोम है, जिनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी बोला जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये थे आज बायोलॉजी में पूछे गए जो एनडीए की जो एग्जाम है उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन। ओके, जय हिंद, जय सीएलसी। Thank you everyone. You're most welcome at the CLC NDA Academy. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. Now today we have to discuss about the General Studies paper. We talk about under the GAT section, history, polity, geography, and the economy and the current affair. As we discussed from the students, the paper pattern was the same from the last years. तो now easy to moderate level था पेपर का, और आइए उसी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं. Let's see. Now first one is the who among the following presided over the first session of All India Kisan Sabha in Lucknow April 1936. और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, अगर आप PYQs ने सॉल्व किया होगा आपने तो ऑब्वियस सी बात है सहजानंद सरस्वती जी. अवध मूवमेंट, ऑल इंडिया किसान सभा, ये जो था ये इसी क्षेत्र में ये सब घटनाएं हुई थी और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है ना. तो चलिए स्टार्ट हो गया. अब अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की मतलब 77 की ओर. नाउ अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस आया है एनडीए में, और साउथ इंडिया में इस प्रकार की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स को चलाया जाता था, और वहां से सेम क्वेश्चन है. और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, चाहे रामकृष्ण मिशन रहा हो, चाहे ब्रह्म समाज रहा हो, इवन दो राजा राम मोहन राय से अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है. तो देखते हैं यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. निम्नलिखित में किसने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत करी? ज्योतिबा फूले, आपको सबको पता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने, और अप्रोक्सीमेटली 1873 में. स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की 1897 में. देन आफ्टर ईवी रामास्वामी अय्यर, इन्होंने सेल्फ मूवमेंट की शुरुआत करी थी, रिस्पेक्ट मूवमेंट की साउथ इंडिया में. BR अंबेडकर ने महाड़ आंदोलन चलाए थे 1927 में दलित जातियों के लिए. तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ईवी रामास्वामी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Chola's inscriptions mention several category of land. Which of the following was a meant for maintenance of the schools? स्कूल कॉलेज. आपको बता दूं चोला डायनेस्टी एक ऐसी लकुदी डायनेस्टी हुई जिसने ये मेंशंस किया है कि वी आर यूजिंग द लैंड दैट वाज द शाला भागा ना, शाला भोग की अगर बात करा जाए तो इस लैंड को यूज किया था. हालांकि प्रीवियस ईयर्स में विलन वो गई लैंड आ चुका है, ये प्रिस्ट के लिए हुआ करता था जो नॉन ब्राह्मण्स हुआ करते थे. तो यहां पे क्या पूछ रहा है, कई श्रेणियों कॉलोनी की, तो कौन सी विद्यालयों के रखरखाव से रिलेटेड थी? दैट इज द शाला भोग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द होम रूल लीग आर करेक्ट? अब देखो लोकमान्य तिलक सेटअप द होम रूल लीग, बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस. अब यहां पे बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ये बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है. तो हम 2 और 3 के साथ जाना चाहेंगे इस क्वेश्चन में. ओके, 2 और 3 के साथ. ओके, यहां पे अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. ईश्वरचंद विद्यासागर विडो रीमैरिज एक्ट के. तो अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईश्वरचंद विद्यासागर इज नॉट करेक्ट? वो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन के संस्थापक थे, और इसी क्वेश्चन को रिपीट अगेन करके क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपको दिखाऊंगा. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये बेथुन के सेक्रेटरी थे, ठीक है, सरकारी स्कूल विद्यालय सही है, लेकिन ये सही नहीं है, डी वाला. विष्णु शास्त्री पंडित जी का क्या योगदान था? तो विधवा, ये जो है विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन से रिलेटेड थे. और करशन दास जी जो थे, करशन दास जी, अगर इनकी बात करी जाओगे तो ये सत्य प्रकाश से संबंधित है. हालांकि सत्य प्रकाश जो बुक है वो लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती, और आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना करी थी 1800. तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर. तो अब मैच करा सकते हैं आप. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ए का 2 एंड बी का 3, ए का 2 बी का 3, दैट्स विल बी द थर्ड, सी राइट आंसर. हड़प्पा संस्था नहरों के अवशेष. देखिए हड़प्पा IBC इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है. फायर अल्टर्स पूछे जा चुके हैं पिछले
इसके पीछे आपसे पूछा जा चुका है कि कालीबंगास पूछा गया था, फायर अल्टर, और इससे पहले पूछा जा चुका है कि जो स्टेटाइट्स, जैसे जो मुहरें होती थी आईवीसी किससे बनी होती थी, स्टेटाइट्स से। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं तो इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ अ कैनाल हैव बीन फाउंड एट द, तो आप ये कह सकते हो कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल सुरतगुई। अच्छा, ये जो साइट है अफगानिस्तान में थी, देहमुंड सुरतगुई। अगर हम बात करते हैं, दीज आर द साइट्स, आईवीसी साइट्स व्हिच वर सिचुएटेड इन द अफगानिस्तान। अप्रोक्सीमेटली 1400 प्लस आईवीसी साइट्स जो है इंडिया में है। एंड अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इनसे कम, अगर अभी वर्तमान की बात करेंगे तो आईवीसी की 2800 साइट, 2800 प्लस आपको इंडिया में मिलेंगी। 1400 प्लस अगर बात करोगे तो पाकिस्तान में मिलेंगी, और अप्रोक्सीमेटली 3-4 मेजर साइट्स जो है अफगानिस्तान में आपको मिलेगी। मोस्ट प्रोमिनेंट जो अगर आपको साइट्स सबसे ज्यादा मिलेंगी वो इंडिया में। और राखी गढ़ी की अगर अंतर बात करते हैं, अभी भी वहां पे डिस्कवरीज चल रही हैं। तो आईवीसी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यहां से पूछा जाना लाजमी था, और आप ऐसा कह सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि भाई इब्न बतूता, अब आपको पता है कि ये जो है मुगल टाइम पीरियड में शाहजहां के समय में आए थे, और इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के समय में आए थे। 1 और 4 आपको क्लियर कट पता है ना। तो अब आप देखो, इब्न बतूता सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए, तो यहां से एक आपको पास आइडिया मिलता है कि दिस विल बी द, सबसे पहले आने वाला व्यक्ति यही था। और यहीं पे अगर आपको पता होता तो 4 के बाद 3, फिर 2, सबसे लास्ट में अगर मैं बात करता हूं सीक्वेंस में, तो अब अप्रोक्सीमेटली शाहजहां के टाइम पीरियड में जो आए थे, पीटर मुंडी साहब आए थे। तो ये विल बी द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। यहां पे क्या है, ब्रेटन वुड्स। यहां पे आप समझ पाइएगा कि ये जो यहां पे शब्द यूज किया गया है, इसका बहुत क्या मतलब है उसको समझते हैं। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इट्स ट्रू है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, आईबर्ड जिसको बोलते हो, अस्थिर विनिमय दर पर आधारित मौद्रिक व्यवस्था थी, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर, सेनगुट्टवन क्या था, चोर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया। सेनगुट्टवन जो थे वो चेर राजा थे, चेराज रूलर थे, लेकिन यहां पे राजधानी दे दिया है। ये थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है। चोला किंग थे नहीं, सातवाहन पांड्या रूलर थे नहीं, तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो ये आंसर है, हालांकि ये चेराज की कैपिटल नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया ना। रामचरिता, अब रामचरित द्वैश्रय काव्य का उदाहरण जिसमें 2 कथाएं एक साथ कहीं, इसके रचयिता हैं संध्याकार, आप ये कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट, फिर कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स भारत सरकार। आपको पता होगा कि जो अपने यहाँ पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट है, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट ना, और उसके बाद करते हैं तो 1784 में आया। इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई। रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई 1773 में, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में बताता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे उनके नियंत्रण में ये व्यवस्थाएं होंगी, है ना। और फिर इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु गोविंद सिंह ने, आपको पता होगा 1699 में 13 अप्रैल 1699 में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, किसका टाइम टेन्योर था उस समय, औरंगजेब के टाइम पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्टेब्लिशमेंट करी थी खालसा पंथ की, और तभी से 13 अप्रैल को वैसाखी फेस्टिवल मनाया जाने लगा। आप सबको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, गुरु गोविंद सिंह। Now, which of the following is known as a Mahaluvis? Now, this was the second 5-year plan, 1956 to 1961. That will be the true. आइए थोड़ा फास्ट चलते हैं। Now, वार्षिक योजनाओं के संबंध में कौन से एनुअल प्लान्स थे? This was the plan holiday 1966 to 1969. Okay. The consider the first BRICS summit कहाँ हुई थी? रसिया में हुई थी। फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो हुई थी वो रसिया में हुई थी, और सिविकेशन दिल्ली में 3 अवसरों पे हुए। बिल्कुल इट्स ट्रू। तो यहाँ पे वनली 2 सही होगा। आइए आगे, प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट इन द फॉलोइंग। देखो ये जो है ये आया 1989 के लमसम की बात करेंगे हम। तो लॉन्च ऑफ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो ना, ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में आया है ना सबसे। तो फिर इसके बाद लॉन्च ऑफ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एडवेंट्स ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स की शुरुआत रसिया के द्वारा की जा चुकी थी। जो बैलिस्टिक्स मिसाइल है उनकी शुरुआत रसिया के द्वारा की जा चुकी थी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में आप देखो थोड़ा सा आपको ईयर्स याद रखना था। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लास्ट हो गया इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, ये रसिया के द्वारा अप्रोक्सीमेटली 1957 के आसपास की रेंज है, तो ये सही होगा 2 और फिर 3 फिर ये सबसे लास्ट में वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो गलत है,
काम पाने का अधिकार डीपीएसपी के अंतर्गत है, मनरेगा आप सुने ही होंगे। राइट, निजता का अधिकार लिया है और ये है, तो 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ फ्लैग ऑफ यूएन सर्किल ऑफ अ गोल्ड स्टार एंड व्हाइट बैकग्राउंड। नो, व्हाइट बैकग्राउंड तो है नहीं यार। द ईयू ऑफ द यूएन कैरीज पेयर्स ऑफ नहीं है, ये गलत है। आसियान ध्वज नीला कलर बिल्कुल एक सही है, थर्ड इज द राइट। ओनली हाउ मेनी स्टेटमेंट इज द ट्रू? ओनली 1। Now, Neil, which of the following committee is not associated with the decentralization of पंचायती राज? अभिजीत सिंह कमेटी ये नहीं है, सारी ये पंचायती राज सिस्टम है। पहले बलवंत राय मेहता आई, फिर अशोक मेहता आई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द स्टेट पॉलिसी पे बेस्ड थी, ग्राम स्वराज पे बेस्ड थी, और फादर ऑफ अगर हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है ना। चल, और आपको पता है कि हमारे यहाँ 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि किससे रिलेटेड है? ग्राम पंचायतों से, और जो 74th अमेंडमेंट रिलेटेड है वो नगर पंचायतों से रिलेटेड है। और ये दोनों अमेंडमेंट हुए थे 1992 में और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड विद द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर ऑफ वाटर? रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल जोन की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला रीजन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना, ये वाला रीजन होना चाहिए। हाँ, फिर इसके बाद तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे इक्वेटोरियल जोन मध्यछांस क्षेत्र, तो ठीक है, दैट विल बी द सब ट्रॉपिक है फिर ना। क्लियर। चलिए, अब फील्ड सार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फेल्ड साल में? अब पृथ्वी की आधी पपड़ी फेल्ड साल से बनी है, बिल्कुल सही है। इट हैज अ लाइट क्रीम टू द सैल्मन प्लीट, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम में सामान्य खनिजों से ना, ये गलत है। तो ओनली 1 and 2 विल बी द राइट। अब कंसीडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो इसमें क्या है कि केमिकली रासायनिक रूप से परिवर्तित होने वाला वो एक ही है ना, तो सेल नहीं है इसमें। नाउ ओसेनिक ट्रेंचेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, बिल्कुल सही। ओसेनिक ट्रेंचेस आर associated with the active volcanic strong, both 1 and 2 will be the right answer, है ना। भूकंप की छाया क्षेत्र के संदर्भ में 105 से 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर डिटरमिनेट सॉर्ट ऑफ पी एंड वेव्स एंड पी तरंगों का छाया, ये थोड़ा गलत है, पहला सही है। क्या होगा इसमें? हवाईयन आइलैंड होंगे ना। The height of wave is determined by the wind speed, wind duration and pitch, the energy of, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं बोथ, ठीक है। चलिए, मृदा निर्माण की अगर बात करते हैं तो बोथ इसमें ठीक है, सही है ये। अब पृथ्वी के वायुमंडल में तो ग्रेटेस्ट इक्वेटर, ये तो बिल्कुल सही है, ओनली 1 इज द राइट आंसर, है ना। और फिर इसमें तो क्या है कि रोटेशन ऑफ अर्थ 1 2 3 है ना। फिर प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स ऊर्ध्वाधर वेग में। अब देखो कंसीडर द कोरियोलिसिस की उपस्थिति, और कोरियोलिसिस से क्वेश्चंस आपके हर बार लगभग एग्जाम्स में आया हुआ है ना। तो यहां पे क्या है कि 1 and 2 ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय प्रभाव को प्रत्यक्ष चारों प्रभावित करते हैं? भाई ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसमें देखो दो जो है, ये दोनों जो ना, ये दोनों क्या है? वार्म करंट है, वार्म करंट है दोनों, तो 1 and 2 ओनली, है ना। फॉकलैंड करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नहीं होगा इसमें ना। क्लियर है यहां तक बात? तो बी विल बी द राइट आंसर। स्टेट ऑफ असम, स्टेट ऑफ असम किनसे किनसे टच करता है? तो भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहां पर क्लियर हो गई बात। अब भूटान और बांग्लादेश की हम बात कर लेते हैं, 2 ये हो गए, 7 स्टेट्स हो गए, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्कन पठार की उत्तरी नदी? नर्मदा कह सकते हो आप। फिर इसके बाद कैल्शियम, पोटास पाया जाता है लेटराइट सॉइल में, क्या पाया जाता है? पोटास, तो ओनली 4 विल बी द राइट। Which of the following statement with reference to the crop cultivated in India is are correct? बाजरा, both statement are the true, सही है, समझिएगा, दोनों सही है। The beaver mines, it is the most important है। देखो यहाँ पे आप समझिएगा, बालाघाट, बिलासपुर, बेल्लारी तो कर्नाटका में आयरन ओर है, बच्चे बच्चे को पता है। बेल्लारी जो कर्नाटका में है वो आयरन ओर के लिए ही है, बच्चे बच्चे को पता है। तो यहाँ पे आप बेवर माइका के लिए पॉपुलर हो गया, ए का 2 हो गया। और फिर इसके बाद बालाघाट मैग्नीज के लिए हो गया, ठीक है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, तो बॉक्साइट के लिए हो गया। अब मिला लो आप, तो मिलाओ इसको, 128 का, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, दैट्स विल बी द ट्रू। फिर एनटीपीसी देखो क्या है कि सब में है, महाराष्ट्र, गुजरात, बट उत्तर प्रदेश में इसका जो है विंध्याचल जो पावर प्लांट है एनटीपीसी का, ये इस एसोसिएट नहीं है। अब देखो पनकी, ये तो उत्तर प्रदेश से ठीक है, और ये गुजरात, ये वाला आई थिंक मेरे समझ से सही है। तो इसमें 2 ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे, है ना। क्लियर है? पनकी उत्तर प्रदेश कानपुर,
है ना। अब यहाँ पे कहाँ पे है, ये इसका है स्विट्जरलैंड में है कहाँ है बेटा, स्विट्जरलैंड में है। फिर व्हाट इज द निक नेम ऑफ नेशनल मेंस हॉकी टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द कूकाबरास, द कूकाबरास। फिर क्या कह रहा है, 2000 आपको पता होगा इंडियन इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, तो 2025 में इनको 100 साल पूरे हो गए। तो बाबू इन्होंने अपना क्या मनाया है, 150वां साल कंप्लीट कर लिया। किसने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विभाग ने। सर्वे ऑफ इंडिया तो हुआ है नहीं अभी, ठीक है। फिर इसके बाद इट इज न्यूली कमीशन नेवल शिप इनटू इंडियन ऑन, ये तो गलत है यार, नेवल शिप नहीं है ये, वो है कि भाई कैसे डेवलपमेंट किया जाए, किसको भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की परिवहन को प्रोत्साहित करने की एक नीति है, दैट्स इज द ट्रू। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी दैट विल बी द 740, है ना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव डज द नीति आयोग सपोर्ट द इंटरेस्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द, अब देखो क्या है कि इसके लिए होगा स्टेट सपोर्ट मिशन के लिए है वो, है ना। फिर इसके बाद क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट अकाउंट ऑफ मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट एंड क्रोमाइट, दैट विल बी द उड़ीसा होगा इसमें, है ना। The movement of every 19 and conducted the B school both 1 and 2, महत्वपूर्ण घटना, ओके ना। इसके ऊपर के दोनों हैं यार, अभी 2025 में जुड़े हैं, 1 and 2 दैट विल बी द, हाँ ना। फॉलोइंग रामसर साइट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली, चारों सही हैं इसमें यार, कोई दिक्कत की ही बात नहीं है। फिर आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी, है ना। ठीक है, देखते जाओ भाई सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं आपका, कोई भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों किसी का छूटना नहीं चाहिए, है ना। सारे क्वेश्चंस हो गए अपने, सारे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद आइए देखते हैं, ये भी हो गया, फिर इसके बाद फोर्थ, फिर इसके बाद आइए देखते हैं, है ना। ओके, ये हो गया, मॉन्ट्रियल यूके, ओके, ये भी हो गया, ओडिशा, ओके, 87, ये फोर्थ हो गया इसमें। हाँ, एथेरियम, देखो एथेरियम, टेदर एंड सोलाना एंड कार्डानो, इस सभी किसके रूप हैं, क्रिप्टो करेंसी के रूप है, किसके रूप हैं बेटा, क्रिप्टो करेंसी के। तो अगर हम देखते हैं, आइए देख लेते हैं, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना क्रिप्टो करेंसी का है ना, किसका है बेटा, क्रिप्टो करेंसी का, तो इसका होगा क्रिप्टो करेंसी। आई होप यू हैव एंजॉयड द पेपर, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद द CLC परिवार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।